Praise the Lord. Welcome, my dear brothers and sisters, once again, in the blessed and highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. मसीह में प्रिय भाई और बहनों और प्रभु यीशु मसीह के महान और अति पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह। Thank you for your kind prayers. Please continue to pray. आप सबकी दया से भरी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। We have been doing our Bible study, or rather Bible survey, on New Testament, and we have come up to the book of Ephesians. और हम जैसे कि नए नियम के अध्ययन में, नए नियम के सर्वेक्षण के अध्ययन में हम अभी इफिसियों की पत्रियों तक पहुंच चुके हैं। Let us just have a overview what we have studied earlier. और आइए हम थोड़ा सा उन बातों को दोहराएं जो हमने पिछले एक दिनों अध्ययन किया है। So we know that the book of Ephesians has been divided into 4 sections. In the first section, we have seen introduction and greetings. In the second section, we have seen the church foundation. In the third section, we are studying the church lifestyle or the practices church has to maintain from chapter 4, verse 1 to chapter 6, verse 20. और हमने इफिसियों की किताब को अध्ययन के लिए 4 भागों में बांटा था। उसके पहले भाग में हमने परिचय और अभिवादन को देखा, दूसरे भाग में हमने चर्च की नींव के निर्माण को देखा, और तीसरे भाग में हमने चर्च की व्यवहार को और उसके दिनचर्या को देखा, जो कि इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 1 से 6 अध्याय के 20 वचन तक है। So in the previous Bible study, we have seen that in the church lifestyle section, there are few more subsections. We have seen that chapter 4, verses 1 to 16, we can understand that the edification of the church is explained widely. और हमने देखा कि तीसरे भाग को अध्ययन के लिए फिर से 5 भागों में बांटा गया था, और उसके पहले भाग में हमने इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 1 अध्याय 1 वचन से 16 वचन तक चर्च की उन्नति के बारे में हमने देखा था। So there in the first subsection, again, it was further divided into 2 sections. Chapter 4, verses 1 to 6, unity of the church, and chapter 4, verses 7 to 16, edification by exercising gifts of the Holy Spirit. और चर्च की उन्नति के विषय को हमने फिर से 2 भागों में बांटा था। 4 अध्याय के 1 से 6 वचन तक कलीसिया की एकता के बारे में, और उसके 4 अध्याय के 7 से लेकर 16 वचन तक हमने पवित्र आत्मा के वरदानों के उपयोग के द्वारा कलीसिया की उन्नति के बारे में देखा। So in the church, unity is very, very important. The unity is measured the maturity of the church. और हर कलीसियाओं में उन्नति के लिए एकता आवश्यक है, और किसी कलीसिया की सिद्धता को अगर देखना है तो हम एकता के द्वारा देख सकते हैं। So we have seen when we studied Corinthians, letter to Corinthians, how a church can be understood, how the membership of the church is maintained. और हमने पहला कुरिन्थी की पत्रियां जब पढ़ी थी तो उस समय हमने देखा था कलीसिया को हम समझे थे, और उनके सदस्यों को किस प्रकार व्यवस्थित रहना चाहिए वो भी हमने देखा था। Since the section chapter 4, verses 1 to 6, the unity of the church is very, very important. Let me just remind you the basic truths about the unity. और जो कि कलीसिया की एकता वास्तव में एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसको हमने पढ़ा है, उसको एक बार फिर से हम थोड़ा सा दोहराने के लिए कोशिश करेंगे। So on the basis of the doctrine which has been explained in the first section 1, 2, 3, and Paul is talking about the unity in the church. और जो सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं कलीसिया की एकता के बारे में, वो पहले, दूसरे और तीसरे वचन में कलीसिया की एकता को प्रस्तुत करते हैं। So unity is always initiated by the Holy Spirit. और ये बात हमेशा हम जानना है कि एकता पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू होता है। The unity which has not been initiated by the Holy Spirit, we cannot continue. और जो एकता पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू नहीं किया जाता उसे हम आगे बनाए नहीं रख सकते। That means people, those who are born again, in whom Holy Spirit is dwelling, and the Holy Spirit unites such people. Only believers are united, never believer and unbeliever. और नया जन्म पाए हुए विश्वासी जिन्हें पवित्र आत्मा मिला होता है वो इस एकता में शामिल होते हैं, और इसके अंदर विश्वासी लोग एकता में आते हैं। विश्वासी और अविश्वासी कभी एकता में नहीं आते। So edification is possible only when there is unity in the local church. तो उन्नति हमेशा तभी संभव है जब स्थानीय कलीसिया एकता में रहती है। What Holy Spirit initiated the unity, every believer is supposed to continue, as the scripture says,
in the chapter 4, verses 2 onwards, there he says, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. और जो पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू की गई एकता को लगातार बनाए रखने के लिए परमेश्वर का वचन इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 2 और 3 में ये सिद्धांत बताता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। So the definition of edification also we have seen in previous studies. Edification means building, because of the sin we were destroyed. The building has been destroyed. The structure has been destroyed. It has to be rebuilt. It has to be again reconstructed. और हमने देखा था कि उन्नति की परिभाषा क्या होती है। उन्नति का मतलब होता है निर्माण, जैसे कि किसी घर का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार जो चीजें पाप ने नष्ट कर दी है उन चीजों का फिर से पुनर्निर्माण करना है और उन चीजों की पुनर्संरचना करनी है, उसी को हम उन्नति कहते हैं। There are many verses concerning edification we find in the scripture. At least 3 important references have been placed on the screen. Romans chapter 14 verse 19, 1 Corinthians chapter 14 verse 26, Ephesians chapter 4 verse 29. और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण जो वचन का संदर्भ बाइबल में दिया गया है, जैसे कि स्क्रीन में हम देख रहे हैं, महत्वपूर्ण 3 वचन रोमियो 14 का 19, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 26 और इफिसियों 4 का 29। So edification means strengthening, encouraging and helping someone to grow spiritually in their faith and relationship with the Lord. वास्तव में उन्नति का मतलब क्या होता है? उन्नति की अगर हम परिभाषा देखें तो उसका मतलब होता है किसी को ताकत देना, उत्साहित करना और उनकी मदद करना, ताकि परमेश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए विश्वास में कोई व्यक्ति आत्मिक उन्नति कर सके। How edification is possible? और उन्नति कैसे संभव है? We see it in chapter 4 verses 11 onwards. He himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of the ministry, for edification of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, up to verse 13, 11, 12, 13. और इफिसियों की किताब 4 अध्याय का 11 से 13 के बीच में ऐसा लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डिलडौल तक ना बढ़ जाएं। So God grants spiritual gifts to the people of God in the local church so that each one of them, one another, they may edify. और परमेश्वर ने स्थानीय कलीसियाओं में इन आत्मिक वरदानों को दिया है ताकि लोग एक दूसरे की सेवा करके इस वरदान के द्वारा उन्नति को प्राप्त करें। So we have heard in our previous study that the fellowship leads to edification. और हमने पिछले क्लास में देखा था कि संगति के द्वारा उन्नति होती है। So fellowship with God and fellowship with one another. तो हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है और एक दूसरे के साथ संगति करनी है। So a fellowship is the one where two believers enjoy fellowship with each other, giving and taking, building each other with the help of the Holy Spirit based on the union in Christ Jesus. और संगति किसे कहते हैं? संगति में दो विश्वासी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, जिसमें एक दूसरे को वो देते हैं और कुछ लेते हैं, और ये चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा एकता में होती है, जो कि मसीह यीशु में वो एक होने के बाद ये संभव होता है। So we have seen in our previous study that chapter 4 verse 7, to each one of us grace has been given according to the measure of Christ's gift.
और जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में 4 अध्याय के साथ में देखा था कि पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। So every believer has been given the gift of the Holy Spirit. So according to the measure of the gift of the Holy Spirit, even grace was also given. तो हमने देखा कि हर विश्वासी को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है और उन्हीं वरदानों के अनुसार अनुग्रह भी मिलता है। So gift of the Holy Spirit is to edify others. और यही पवित्र आत्मा का वरदान एक दूसरे की उन्नति का कारण होता है। Suppose God has given me the teaching gift. जैसे कि परमेश्वर ने मुझे अगर शिक्षा देने का वरदान दिया है, So the teaching gift has been given to edify others. My business, rather, my responsibility is to edify others through the Holy Spirit of gift, the gift of the Holy Spirit given to me uh, in the way of teaching the Bible teaching. और जैसे कि अगर हम सीखें कि सिखाने के द्वारा उन्नति कैसे होती है, तो मुझे क्या करना है, पवित्र आत्मा का वरदान जो मुझे मिला है, जिसे हम शिक्षा का वरदान कहते हैं, उसके द्वारा मुझे दूसरों को सिखाना है। So by the grace of God, I have to exercise the gift and bless others, build others. तो इसी मुझे अनुग्रह मिला है कि इस वरदान के द्वारा मैं दूसरों की सेवा करूं और दूसरों को निर्माण करने के लिए मैं उनकी सहायता करूं। I have nothing to boast because it is not because of the merit, my merit, I am doing something. It is because of the grace, because it is gift, not something what I earned. और जैसा कि यहाँ पे मेरे पास कोई घमंड करने का विषय नहीं है, क्योंकि ये मेरी योग्यता से नहीं है, परंतु ये जो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान और उसके अनुग्रह के द्वारा संभव है। So every believer in the local church are equipped for the work of the ministry. Why? For the edification of the body of Christ. इसलिए स्थानीय कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों को और अगुओं को संपूर्ण होना है, परिपूर्ण होना है इस शिक्षा और वरदानों में, ताकि स्थानीय कलीसिया की उन्नति का कारण बन सके। We will understand when we read chapter 4, verse 13, the very definition of the edification. और जैसा कि उन्नति की अगर परिभाषा देखें, तो इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 13 में लिखा हुआ है। Please try to understand. It's a very, very important one. और ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Maybe I'm there in the church for about 10 years or 15 years or 20 years. The question I have to raise is, so to what degree and dimension, to what measure of edification I have received? तो मुझे हो सकता है सेवा करते हुए 10 साल, 15 साल या 20 साल हो गए होंगे। तो यहाँ मेरे लिए एक सवाल बनता है कि मैंने कितनी उन्नति प्राप्त की है, उसको मैं कैसे माप सकता हूँ, या मेरे पास कौन से मापदंड होंगे जिससे मेरी उन्नति को मैं देख सकूं। We find it in verse 13. और इस 13 वचन में हम कुछ बातों को देख सकते हैं। So the gift of the Holy Spirit has been given. The saints in the local church are equipped to edify the body. How? Verse 13. Till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो वरदान मिलता है सेवकों को, उसके द्वारा मसीह की देह की उन्नति कैसे होती है, उसको हम इस वचन से समझ सकते हैं, जहाँ लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डिलडौल तक ना बढ़ जाएं। So let me, make into bits and pieces to understand very well. So until we all attain the unity of faith. और अगर हम इसे अलग अलग टुकड़ों में बांटकर, अलग अलग भागों में बांटकर समझने की कोशिश करें, तो यहाँ लिखा है कि जब तक हम सब के सब विश्वास की एकता में ना आ जाएं। So unity of faith in what? Of the knowledge of the Son of God, to a mature man. So the knowledge of the Son of God, the knowledge of the Lord Jesus Christ, the knowing of the Lord Jesus Christ in the unity of faith makes me to a matured man. तो यहाँ पर विश्वास की एकता के द्वारा क्या होता है,
विश्वास की एकता के द्वारा परमेश्वर के पुत्र का ज्ञान हमें मिलता है, और उस परमेश्वर के पुत्र अर्थात मसीह यीशु के ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम एक सिद्ध मनुष्य के रूप में खड़े हो जाते हैं, और मसीह की पूरे डिलडॉल में हम बढ़ जाते हैं। So see, to attain unity of faith means what? When all believers gather together, each one the gift of God that has been given to each one. When each one exercise the gift of the Holy Spirit and bless others and build others, what happens ultimately? We all grow to a matured man based according to the knowledge of the Son of God given to each one. It is also done in the unity of faith. और विश्वास की एकता का मतलब क्या है? विश्वास की एकता का मतलब है कि सभी विश्वासी लोग जब संगति में जमा होते हैं, तो उनके वरदानों के उपयोग के द्वारा वो एक दूसरे को आशीषित करते हैं और बढ़ते जाते हैं। इसके द्वारा उनकी उन्नति होती है, और वो सिद्ध बनते जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है कि वे परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक सिद्ध मनुष्य बनते जाते हैं। Again, to the maturity means to what level of maturity? Paul continues to say, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. That is the expectation. और सिद्ध मनुष्य बनना है, लेकिन कहाँ तक सिद्ध मनुष्य बनना है? तो यहाँ पे लिखा है मसीह के पूरे डिलडौल तक हम सिद्ध मनुष्य बनना है। I'm really excited. The expectation, the bar of expectation is so much so that I should become like Christ. That's important. That's what the scripture says. और यहाँ पे मैं उत्साहित होता हूँ इस वचन को देखकर कि यहाँ पे हमें कहाँ तक सिद्ध होना है लिखा है। तो जब तक हम मसीह के जैसे ना दिखने लगे तब तक। That is the beauty of the importance of the local church. और यही स्थानीय कलीसिया की सुंदरता है। if you if you if you if you if you neglect the church, if you don't fellowship with the church, if you don't join in the church, if you don't give and take what has been given to you or given to others to bless you, you miss this point. और अगर आप कलीसिया की साथ में आप जमा ना हो, वहाँ पे आप संगति ना करें, वहाँ पे एक दूसरे के साथ आप ना बैठें, लेन देन ना करें, तो कभी भी ये बातें संभव नहीं है। So this is the responsibility of the church leadership to see that to identify different gifted people in the local church, be given opportunity, given place, given space, so that they may exercise the gift of the Spirit, the resources God has provided them, so that they may share with others, and everybody will grow to a matured person, even to the measure of the stature according to Christ's fullness. और ये एक अगुवेपन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कलीसिया के स्थानीय कलीसिया के सदस्यों में वरदान पाए हुए लोगों की पहचान करे, और उन्हें एक अवसर प्रदान करे, उन्हें एक जगह प्रदान करे, उन्हें अनुमति दें कि वो अपने इस वरदानों का एक स्रोत के रूप में उपयोग कर सकें। और उसके द्वारा जब वो इन स्रोत को बांटते हैं, तो उसके द्वारा स्थानीय कलीसिया के सभी लोग उन्नति प्राप्त करते हैं, सिद्ध होते हैं, और वो मसीह के डील डौल तक बढ़ जाते हैं। Please remember that the responsibility that lays upon the leadership is great. और एक बात याद रखिएगा प्रियो, कि अगुवेपन की जो जिम्मेदारी होती है, वो एक बहुत महान जिम्मेदारी होती है। It's a very sorrow state of affair to see in most of the local churches there is one man show, or it's a family line kind of ministry. Although they are not called to teach, they are not given the gifts of the Holy Spirit. They are not qualified to teach. They are not qualified to stand in the pulpit. They don't keep their life worthy to stand as a representative of God. Unfortunately, such people are filling the pulpit and spoiling the whole responsibility given to the leadership. और ये बड़ी दुख की बात है कि आज स्थानीय कलीसियाओं में हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बिना वरदान पाए हुए लोग जो हैं सेवा करते हैं, और फैमिली लाइन में लोग अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही संबंधियों को खड़ा कर देते हैं, भले उन्हें वरदान मिला हो या ना मिला हो, उनके अंदर गुण और योग्यता हो या ना हो। उन्हें वे लोग कई बार कलीसिया के
प्रतिनिधि के रूप में खड़ा कर देते हैं, जबकि वो उस प्रतिनिधि के रूप में नहीं होते हैं, और उस प्रकार वो फूलपीठ में उस प्रकार की वो सेवा करने लगते हैं। इसके द्वारा वहाँ पे उन्नति नहीं होती है। Please remember, both the word of God and prayer, they should go together. और एक बात याद रखिएगा प्रियो, कि वचन और प्रार्थना दोनों एक साथ चलना है। The word of God should lead us to pray according to the word of God. और परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करना सीखें। When we pray according to the scripture, definitely revival will take place. प्लीज रिपीट अंकल। If we pray according to the scripture, definitely revival will take place. और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो जागृति जरूर होती है। But unfortunately, or I don't know what word I should use, we pray a selfish prayer. We don't pray even according to the scripture. There is no passion in the prayer. There is no commitment in the prayer. We just pray only for our personal needs. We just pray superficially. We don't understand the heart of God. We don't understand the mind of God. We don't really pray as we are supposed to pray. And that too, that should be based on the scripture. Certainly revival will take place. और ये दुर्भाग्य की बात है, या उसके लिए मैं क्या शब्द उपयोग करूं मुझे पता नहीं है, लेकिन आजकल प्रार्थना कई बार हम देखते हैं स्वार्थी होती है। कई बार प्रार्थनाओं में उत्साह नहीं होता है, समर्पण नहीं होता है, और कई लोग केवल व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार लोग ऊपर ऊपर की चीजों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, और कई बार लोग प्रार्थना में परमेश्वर के मन और हृदय को नहीं जानते हैं, और इसके कारण वे एक साधारण प्रार्थना करते हैं, जिसके कारण जागृति नहीं आती है। So the right teaching, a true, the text of the teaching reaches to the people, and people repent and they pray. Such prayer will bring revival. और जब सही शिक्षा लोगों को मिलती है और सही वचन के संदर्भ के अनुसार लोग प्रायश्चित करते हैं, और तब वहां पर ऐसी शिक्षा लोगों को मिलती है, उस प्रार्थना जब वहां पर ऐसी प्रार्थना होती है, ऐसे लोगों के बीच में जो पश्चाताप करते रहते हैं, जरूर जागृति आती है। What do you mean by revival? और जागृति का मतलब आप क्या समझते हैं? People have the knowledge of the Son of God. They grow to a maturity, to the measure, to the fullness of Christ. और वास्तव में जागृति का मतलब क्या होता है? और वो है कि लोग परमेश्वर के पुत्र की पहचान को समझें, उसके ज्ञान को प्राप्त करें, ताकि वे एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं और मसीह के डिल डौल तक बढ़े। So we have seen in our previous class that chapter 4 verse 16, from the whole body joined and knit together by what every joint supplies according to the effective working by each part does it share, causes growth of the body for the edification of itself in love. जैसा कि हमने इफिसियों की किताब 4 के 16 में पढ़ा था, यहाँ लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। So every part does its share. That's very important. और ये लिखा है कि हर एक अंग जो है ठीक ठीक कार्य करना जरूरी है वहाँ। Every part in the body joined and knit together. That's very important. और वहाँ लिखा है कि हर एक अंग जो शरीर में है, वो एक जोड़ की सहायता से एक साथ गठे रहना है। So every part of that which is joined and knit together supplies something, that will enable, causes the growth of the body for the edification of itself in love. That's important, in love. और लिखा है कि जब ये अंग ठीक ठीक कार्य करते हैं और एक साथ गठ कर उस जोड़ की सहायता से जुड़े रहते हैं उस देह में, तब इनके ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा, अर्थात एक दूसरे को ठीक ठीक चीजें बांटने के द्वारा, ये अपने आप को बढ़ाती है, और इसके द्वारा मसीह के देह प्रेम में उन्नति करती जाती है। That is called fellowship. That is called fellowship. इसी को संगति कहते हैं। If fellowship takes place properly, then edification will certainly do that. और अगर संगति सही हो रही है तो उन्नति जरूर होगी। In our previous Bible study, Sister Ragini asked a question. How do we know what spiritual gift I have? और पिछले क्लास में हमने देखा था कि रागिनी सिस्टर ने एक सवाल पूछा था कि हम अपने आत्मिक वरदान को कैसे पहचान सकते हैं। At least 15 to 20 minutes it has been shared.
और हमने लगभग 15 से 20 मिनट इस विषय पर कुछ बातें बांटी थी। So let me recall our memory in a very brief manner because I cannot keep on repeating the same. I need to cover something new. और हम थोड़ा सा उसको, जो हमने बातों को याद रखा था, उसे थोड़ा सा दोहराएंगे ताकि हम आगे भी बढ़ सकें। So the gift of the Holy Spirit that is given to me causes me burden and concern. So what I do is I'll pray for it. और जो वरदान मुझे दिया गया होगा उसके द्वारा परमेश्वर मुझे एक विशेष बोझ प्रदान करेंगे, एक समझ प्रदान करेंगे, और उसके अनुसार मुझे प्रार्थना करनी होगी। So accordingly, God will open the doors. और उसी के अनुसार परमेश्वर हमेशा एक द्वार को खोलेंगे। But I do not know which gift I have. What I do is whatever the door that is open, I keep involving in that. और अगर मुझे नहीं पता है कि मुझे कौन सा वरदान मिला है, तो मेरे साथ मुझे एक काम करना पड़ेगा कि जितने द्वार खुले हैं उन द्वारों में मुझे प्रवेश करना होगा। What happens when I keep exercising the gift of the Holy Spirit that is given to me, although I do not know it? By doing so, the others, those who are observing me, watching at me, witnessing at me, they understand that this is the gift of the Spirit God has given to this brother or this sister. और अगर मुझे नहीं पता है कि मेरे अंदर कौन सा वरदान है, और फिर भी मैं पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदानों की सेवकाई कलीसिया में करता हूँ, और जो कुछ मैं कार्य करता हूँ उसे देखकर जो हमारे विश्वासी हैं वो देखेंगे, और मेरे द्वारा की हुई सेवा को देखकर एक गवाही जरूर देंगे कि इस भाई के जीवन में ये वरदान काम कर रहा है। So let me repeat once again. The thing which I cannot do normally with human capacity, I will be able to do with the power of the Holy Spirit in a something special way, in a something deeper way, in a something way that will bless others, that will build others. तो इसका मतलब क्या है प्रियो? वरदान का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारी मानवीय क्षमता से परे है, परंतु जो हम मानवीय क्षमता से नहीं कर सकते, वो पवित्र आत्मा हमें उन विशेष अनुग्रह को देता है, हमें विशेष उस सामर्थ को देता है, और उसे हम गहरे तरीके से उस कार्य को कर पाते हैं उन वरदानों के द्वारा, जिससे दूसरों को आशीष मिलता है और उनका निर्माण होता है। In the process of exercising the gift of the Holy Spirit, when what I'm doing it, I rejoice in the Lord more and more. I have that kind of fear of God. I have that kind of satisfaction. I have that kind of joy. Yeah, I'm really excited, and because Holy Spirit is using me, and I'm able to do something which I'm normally able to do. A special capacity has been given to me to do something that will build others. और हम यह देखते हैं कि जो परमेश्वर के वरदानों के दी हुई जो वरदान की जो सेवा की प्रक्रिया कैसे होती है, वो इस प्रकार होती है कि जब पवित्र आत्मा का वरदान हमें दिया जाता है तो उसकी सेवा करने से हमें आनंद मिलता है, हमारे अंदर एक भय आता है, एक संतोष आता है, एक खुशी मिलती है, हमारे अंदर एक उत्साह प्रकट होता है, और उसी उसके द्वारा पवित्र आत्मा जब हमें उपयोग करता है तो उस विशेष क्षमता को पाने के द्वारा हम दूसरों को निर्माण कर पाते हैं। Then others will come and say that, brother, thank you for doing this. God has blessed me. Thank you very much. May the Lord bless you more and more. May the Lord use you more and more. Something like that. They'll pass on a comment. They'll be with full of gratitude that God ministered to them through me. और इस सेवा के द्वारा दूसरे व्यक्ति उसे आशीष पाते हैं और हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई, मैंने आपकी सेवा के द्वारा आशीष पाया है, परमेश्वर आपको और भी आशीष दे और उपयोग करे। और वो व्यक्ति धन्यवाद के हृदय के साथ उनके पास अपनी गवाही को रखते हैं। I myself wonder, "Arey, how could I do it? Normally, it's not me, but I could do it. I could make it because it is the work of the Holy Spirit." I slowly realize my own gift. Then what I do is I exercise that gift whenever God opens the door. I work on it to improve on it. That's what Apostle Paul says in 2 Timothy chapter 1, verse 7. Stir up the gift of God that is given unto you. और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे जीवन से मैं सामान्यतः ये कार्य नहीं कर सकता, लेकिन ये कैसे हो गया और मैं कैसे इसे कर पाया। और ये तब मुझे समझ में आता था कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है, जो उन्होंने मुझे उपयोग किया है, मेरे लिए द्वार खोला है,
और उस परमेश्वर ने जो मेरे लिए द्वार खोला उसके द्वारा मैं ये कार्य कर पाया हूँ। और तब हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने को मिलता है कि जो वरदान तुझे मिला है तो उसे प्रज्वलित कर दे। When I told you God opens the doors, that means people invite me. People give me opportunity to exercise the gift of the Spirit, what has been given to me. और यहाँ पे हम जब बोलते हैं कि द्वार खोलता है परमेश्वर, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमें सेवा का अवसर मिलता है, लोग हमें सेवा का अवसर देते हैं, जगह देते हैं, और जहाँ पे हम पवित्र आत्मा के वरदानों का उपयोग कर पाते हैं। I only told you about the gift of teaching. और अभी तक मैंने आपको केवल एक शिक्षा के वरदान के बारे में बताया है। There are few gifts, that are mentioned in the Bible. और कुछ वरदान हैं जिसे बाइबल में बताया गया है। Few in the sense, at least 16 gifts are mentioned in the scripture. और वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो 16 वरदानों के बारे में लिखा हुआ है। And there are many more dimensions of it. और इसके कई सारे और दृष्टिकोण हो सकते हैं। So we have seen in our previous section uh, uh, that um, let's try to recap again. और हमने पहले जिस कुछ भागों को देखा था उसे थोड़ा सा हम दोहराने की कोशिश करते हैं। 1 minute, let me open that file. Let me open that file. Yeah. So in the previous class, we have seen few things. और हमने पिछले क्लास में वरदानों के विषय में कुछ बातों को सीखा था। So there are 4 places where about the gifts of the Holy Spirit is mentioned categorically. और ये 4 जगह पे वचन के बाइबल में 4 जगह पर ऐसे जगह हैं जहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदानों को एक क्रम में बताया गया है। Romans chapter 12 verses 1 to 8, 1 Corinthians 12 7 to 11 and verse 28, chapter 7 verse 7, Ephesians 4:13 just now we have read, and also 1 Peter chapter 4 verses 9 to 11. और ये 4 जगह है रोमियो की किताब के 12 अध्याय के 1 से 8, दूसरा जगह है पहला कुरिन्थी 12 का 7 से 11 28 वचन, और पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 7 वचन। तीसरा भाग है इफिसियों की किताब 4 का 13 जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, और चौथी जगह है पहला पत्रस 4 अध्याय का 9 से 11। So within the given time, what I do is I'll rush through. और हम क्या करेंगे, दिए हुए समय में हम इसे जल्दी से सीखने की कोशिश करेंगे। So as a Bible teacher, what I tell you, the understanding what God has given me. और एक बाइबल के शिक्षक होने के नाते मैं क्या करता हूँ, और वो है कि आपको इन चीज़ों को समझने के लिए सहायता करता हूँ। Please remember, when the Bible clearly explains that I have a strong hold on it. प्लीज रिपीट अंकल। When the Bible clearly explains about certain truths, I will strongly take a hold on it. और जब एक बात याद रखें कि बाइबल यानी परमेश्वर का वचन जब कुछ विशेष सच्चाइयों को आप तक प्रकट करता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस सत्य को दृढ़ता से पकड़ के रखें। But there are few texts in the scripture, in the Bible, or difficult passages, difficult to understand. Then what we do is we will keep working on it. We will try to dig deep. We will try to understand. We will pray and wait upon the Lord. और अगर कुछ वचन के संदर्भ हमारी समझ में ना आए और वो हमारे समझने के लिए कठिन हो तो हमें क्या करना है, उसके लिए कार्य करना है, और उसके गहरी शिक्षा को समझने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर प्रार्थना करना है। Because of the difficult passage, we need not hide it or throw it away or neglect it, but we need to work on it and keep it in our memory, asking the Lord, Lord, help me to understand this difficult passage, open my minds and open my understand. Or someone who is already, have a proper grip on it, and God will open the door, and through such fellowship, and we will get the inputs.
और जो वचन कठिन है, वचन का भाग हमारे समझने के लिए कठिन है, तो हम उसे छोड़ना नहीं है या छुपा नहीं देना है, हटा नहीं देना है, परंतु हम उसे अपने यादों में रखे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारी मदद करे, वो हमारे बुद्धि और समझ को खोले, ताकि हम उसे समझ सके और लगातार उसको संगति में हम परमेश्वर की सहायता से समझने की कोशिश करें। Praise the Lord. God is so good. God has raised many theologians in these 2000 years, and many scholars did a lot of scholarship work, and they have made it available in the written text format, or even in the audio format, even in the internet. In one click you can find it. But we should be very careful about the right theology and wrong theology. और हमें धन्यवादित होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो परमेश्वर के ज्ञानी हैं, थियोलॉजियंस हैं, जिन्होंने 2000 साल से परिश्रम किया हुआ है इस वचन के ऊपर में, उन्होंने बहुत कार्य किया हुआ है, और आज उन्होंने इस वचन के लेख को लिख कर हमारे लिए रखा है, ऑडियो फॉर्म में भी रखा हुआ है। और कई बार हमें एक इंटरनेट का बटन दबाते ही हमें बहुत सारे ज्ञान मिल सकते हैं, परंतु हमें इस बात को समझना है कि उसमें वचन की सही शिक्षा और गलत शिक्षा कौन सी है। So, by the grace of God, the knowledge and wisdom, whatever God has given me, I have understood to some extent. Whatever I understood, I will put forth before you. I will not be taking any sides. I will not have any kind of impartiality, but straightforward, whatever I understood, I will put forth before you. और जहाँ तक मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, ज्ञान और समझ दिया है, वहाँ तक मैं आपको समझाने के लिए आपके सामने इन सारी बातों को रखता हूँ, और इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात ना करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। So, in the gifts of the Holy Spirit, there are schools of thought. One is continuationism, the other is cessationism. और पवित्र आत्मा के Sorry. उपयोग के पर पवित्र आत्मा के वरदानों के उपयोग के बारे में दो प्रकार के सिद्धांतवाद हम देखते हैं, और दो प्रकार का सिद्धांत है, पहला निरंतरता का वाद और दूसरा समाप्तिवाद। So, continuationism means the gifts of the Holy Spirit which were in operation during the time of, the scriptures written from Matthew to Revelation. So, the same spiritual gifts continues even till now. That is the meaning of continuationism. और निरंतरतावाद का मतलब क्या होता है कि जो वरदान परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक, वो अभी भी कार्य कर रहा है वर्तमान में। इसका मतलब यही है निरंतरतावाद। So, cessationism means so the spiritual gifts that were in operation during the New Testament period from Matthew to the Revelation, once the written format of God's word is completed, so some of the gifts are ceased, no more in operation after the first century. और जो समाप्तिवाद का सिद्धांत का मतलब क्या है, ये समाप्तिवाद के सिद्धांत वाले कहते हैं कि पवित्र आत्मा को जो वरदान नए नियम में प्रकट होता है, जो कि मत्ती से प्रकाशित वाक्य के बीच में हम देखते हैं, जैसे ही वो पूरा हुआ और उसको एक रिटर्न फॉर्मेट के रूप में पूरा लिख लिया गया, उसके बाद उसमें से जो वरदान है कई सारे, उन्होंने काम करना अभी बंद कर दिया है, और वर्तमान में वो पूर्ण हो गए हैं और अभी वो काम नहीं करते हैं। If you have to understand which one is correct, continuation is correct or cessationism is correct, you should know the principles of interpreting the text, the Bible. और निरंतरतावाद सही है या समाप्तिवाद सही है, इसे समझने के लिए हमें एक विशेष सिद्धांत का अध्ययन करना है, जिसे हम बाइबिल के अर्थों की व्याख्या शास्त्र कहते हैं। उसकी हम सही व्याख्या करना सीखना है। I was also in confusion without before I knew the principles of interpretation of the scriptures. और जब मैं भी संदेह में रहता था, जब तक कि मुझे वचन की जो सिद्धांत को समझने के लिए व्याख्या शास्त्र के बारे में मालूम नहीं था, तब तक मैं भी कुछ संदेह में रहता था। That is called hermeneutics in Greek. और इस शब्द को यूनानी भाषा में हर्मेनेटिक्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है व्याख्या शास्त्र। So the principles of interpreting the text says that the truth in the Bible is of many different varieties. तो हम अगर देखें वचन की आ, जो बाइबल में लिखी है, उसके सिद्धांत क्या है व्याख्या शास्त्र के अनुसार, तो इसके अनुसार इसका अर्थ है
कि वचन को वहां पे समझने के लिए हमें उन कार्यों को समझने के लिए कई प्रकार के संदर्भों को देखना पड़ेगा। So let me at least give you three basic principles now. Only three. There are many. At least three I will try to explain you, because you will not be able to understand between these two unless until you know the principles of interpreting the text. तो मैं आपको यहाँ पे मुख्य तीन आधारभूत सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जो कि व्याख्या शास्त्र का है, और तभी आप इन विषयों को समझ पाएंगे कि कौन सा सही है। Not only these two, if you have to understand the text, as you read the Bible, if you don't know the principles of interpreting the text, you'll be there is a danger of misleading. You can't interpret everything literally. और अगर आप केवल इस विषय को ही नहीं, परंतु किसी भी वचन के सही संदर्भ को अगर आप उसके सही व्याख्या सिद्धांत के अनुसार, व्याख्या शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नहीं समझेंगे, तो कई बार आप उसे गलत तरीके से लोगों को सिखा देंगे, और गलत तरीके से सिखाने के द्वारा काफी प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। God willing, in future, I will try to exclusively talk about the disciplines, disciplines to interpret the text. God willing, और please pray about it. तो प्रभु ने चाहा तो आने वाले समयों में हम विशेष व्याख्या शास्त्र के अनुशासन के बारे में ही बातें देखेंगे। Number one, तो जो इसका आधारभूत सिद्धांत है वो सबसे पहला है a text is properly understood in its context. कि किसी वचन को अगर हमको समझना है तो उसके सही संदर्भ में हम उसे देखना है। So, if you don't understand the context, you will be misled to understand the text. और अगर आप किसी वचन के सही संदर्भ तक नहीं पहुंचते हैं तो आप कई बार उस वचन की गलत अगुवाई में चले जाते हैं। So in that, what you have to do, the author's intention, why the author is writing to these audience, what is the author's intention? What is the context? What is the culture? And what was happening then? Then what's the difference between them and us, and how to bridge these two the situations? You need to work a lot in the very first discipline. तो पहले अनुशासन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिस वचन के संदर्भ को समझना है उस लेखक के विचार को जानना पड़ेगा कि उन्होंने किस मंशा से उसे लिखा है, उनके श्रोता कौन थे, और उन श्रोता तक वो कौन से विचार पहुंचाना चाहते थे, उनका संदर्भ क्या था, उस समय लोगों की संस्कृति क्या थी, और उस समय के लोगों में और अभी हमारे लोगों में क्या अंतर है। उससे हम इन सारी विषयों पर अध्ययन करने के बाद हम पहले भाग को देख सकते हैं कि वचन का अर्थ क्या है। The time gap is more than 2000 years. क्योंकि ये जो लिखा गया शब्द है, वचन है, ये 2000 साल पहले लिखा गया है। It was written in Greek, but now we read in Hindi or English or Telugu. और ये लिखा गया था यूनानी भाषा में, लेकिन आज हम इसे हिंदी, इंग्लिश या तेलुगु में पढ़ रहे हैं। There is a language barrier, there is a language gap. यहाँ पे भाषा का बहुत अंतर है और भाषा में भिन्नता है। Their culture is different, our culture is different. उस समय के लोगों की संस्कृति अलग थी और आज हमारी संस्कृति अलग है। Their requirement is different, our requirement is different. उस समय लोगों की जरूरतें अलग थी और आज हमारी जरूरतें अलग है। The exposure what they have is different, the exposure what we have is different. और उस समय के लोग जिस परिस्थितियों का सामना कर रहे थे वो अलग है, और आज जिन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं वो अलग है। If we don't consider all these things, we cannot understand the text properly. और इन सभी विषयों को अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वचन के सही संदर्भ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। That is point number one. ये है पहला बिंदु। Point number two, दूसरा बिंदु है a prescription and a description. और हम यहाँ देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बारे में। The Bible prescribes, the Bible describes. क्योंकि बाइबल का वचन लिखता भी है और दूसरा उसे समझाता भी है। Bible says David did this. Bible says Saul did this. Doesn't mean to say that whatever Saul did, you do. Whatever David did, you do. No, that is a description. It is an explanation. His life, his testimony, his situation, description. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कुछ बातों को समझाता है, जैसे कि नमक का क्या काम है, दाऊद ने क्या किया। इन सारी वचनों को हम पढ़ते हैं तो वो हमें इस परिस्थिति को उनके समझाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दाऊद के जैसे हम भी करने लगे, परंतु I think परमेश्वर का वचन उनके जीवन को
और उनकी परिस्थिति और विषयों को हमारे सामने रखता है। I think in a previous class I gave you one example saying that doctor prescribes. Doctor after prescription he explains within the as the time permits, or else what he does, he will ask the compounder, he will ask the pharmacist, he will ask his assistant to explain the prescription. So pharmacist will describe and doctor will prescribe. पिछले हफ्ते हमने इसका उदाहरण देखा था कि जब कोई डॉक्टर किसी मरीज को देखते हैं और उसके लिए दवा इलाज के रूप में प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो थोड़ा सा उसे वर्णन करते हैं, परंतु अगर उनके पास समय नहीं होता तो वो अपने सहयोगी कंपाउंडर या फार्मासिस्ट को कहते हैं कि आप इस विषय को लिखे विषय को उस मरीज को अच्छे से वर्णन करके बता दें। Sometimes the language, the text written by doctors, only pharmacist can interpret. No one on the face of the earth can understand. और और आप देखेंगे कई बार डॉक्टर जिस भाषा में दवाई को लिखते हैं उसे फार्मासिस्ट के अलावा इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। So prescription is important. So once you have to properly interpret the prescription, you understand the description. और अगर जो प्रिस्क्रिप्शन यानी जो लेख लिखा गया है उसकी सही व्याख्या आपने समझ ली तो उसकी सही वर्णन भी आप कर पाएंगे। And third one is और तीसरा तीसरा भाग है a specific truth explained for the specific people, a specific time, a specific situation, and truth, a common truth for everybody. और तीसरा विषय क्या है कि जो विशेष सच्चाइयाँ होती है वो विशेष लोगों को विशेष समय में और विशेष परिस्थिति में बताई जाती है, परंतु जो सामान्य सत्य होता है वो सब लोगों को मालूम होता है। So to understand better, there are 10 commandments. जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए 10 आज्ञाएं। All these 10 commandments came from the moral characteristics of the Lord himself. और ये जो 10 आज्ञाएं हैं ये कहाँ से आई है? ये परमेश्वर के नैतिक गुणों के द्वारा आई है, They are called moral laws. जिन्हें हम नैतिक आज्ञा या नियम कहते हैं। It won't change. ये कभी बदल नहीं सकती। No one should say that this is only our Old Testament law, not New Testament. No. और कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि ये पुराने नियम की आज्ञा है, नए नियम की नहीं है। You shall not murder. That is for every age. जैसे कि लिखा है कि तुम हत्या नहीं करना, ये सभी लोगों के लिए है। You shall not do adultery. That is for every age. जैसे लिखा है कि तुम व्यभिचार नहीं करना, ये सभी लोगों के लिए है। Honor your father, honor your mother. That is for every age. तुम अपने माता पिता का आदर करना, ये सभी लोगों के लिए एक समान है। No covetousness. That is for every age. प्लीज रिपीट अंकल। No covetousness. Covet not others have. यस अंकल, एक्चुअली योर वॉइस इज कट ड्यू टू इंटरप्शन इन नेटवर्क। No, is तो it? हम देख रहे हैं Is it okay कि now? लिखा है, यस अंकल, दूसरे के किसी चीज का लालच ना करना। So that's important. And in the Old Testament period, God Himself told them to offer sacrifices. After the death of Jesus Christ, those sacrifices are not required because they're all fulfilled in the Lord Jesus Christ. There is a difference, there is a change. और हम जानते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने खुद बलिदान चढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को बलिदान चढ़ाने के बाद उसे पूरा कर दिया, और आज हमें उस बलिदान को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये बदलाव हमने देखा है। So what is truth for them? Offering sacrifices, they did it physically. Now we do it spiritually. There is a change, Doesn't mean to say that God changed His laws. So the exposure given to them was different. The exposure given to us are different. और हम देखते हैं कि उस समय के जो लोगों ने बलिदान दिया वो शारीरिक बलिदान था वस्तुओं का, लेकिन आज जो हम बलिदान चढ़ाते हैं वो आत्मिक बलिदान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बदल गया है, लेकिन वो आज भी हमें बलिदान चढ़ाने के लिए कहता है और वो आत्मिक बलिदान के रूप में कहता है। I think if you can at least understand these three principles, you'll be able to understand the truth. और किसी सत्य को समझने के लिए मैं समझ सकता हूँ कि ये जो 3 विशेष सिद्धांत है जिससे आपकी जरूरत, जिससे आप समझ सकते हैं। Just as in the Old Testament, God specified so many laws, and many of the laws are fulfilled in Christ. Now they did it physically, now we do it spiritually. There is a change.
और पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे नियम बताए गए थे, बलिदान के बारे में बताए गए थे। उसे मसीह यीशु ने पूरा कर चुके हैं और हमें उसे उसी प्रकार करने की जरूरत नहीं है, परंतु आज उन बलिदानों को हम आत्मिक रीति से पूरा करते हैं। God told Abraham saying that you must circumcise. That is the that जैसे कि is the sign of a covenant. जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तुम्हें खतना कराना जरूरी है, और ये उस समय की वाचा का एक चिन्ह था। Now we don't do. और आज हमें ये करने की जरूरत नहीं है। There is a different connotation of the circumcision. और ये जो खतना है, इसके कई प्रकार के विषय हैं। Bible scholar says that that is compared with baptism. It is a sign, a open testimony before everybody saying that I belong to Christ. I am born again. I'm dead with Christ. I'm raised again with Christ. और खतना क्या है बोलने से हम समझ सकते हैं कि खतना शारीरिक विषय तो है, लेकिन उसके साथ हम आत्मिक दृष्टिकोण से इसे हम देखते हैं कि एक चिन्ह है बपतिस्मा का, और दूसरों के सामने अपने उद्धार की गवाही को प्रकट करने का, कि मेरा नया जन्म हुआ है, मेरे पापों के लिए मेरा यीशु मसीह के साथ मैं मर गया हूँ और उसके साथ जी उठा हूँ। I think with this introduction, I can proceed safely further. और मैं विश्वास करता हूँ कि इस परिचय के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। So let me repeat once again. Cessationism is the belief that the miraculous gifts of the Holy Spirit ceased with the completion of the canon of the scripture in the New Testament or at the end of the first century when the last of the original apostle died. समाप्तिवाद यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा के चमत्कारी वरदान नए नियम में पवित्र शास्त्र के सिद्धांत के पूरा होने के साथ समाप्त हो गए, या पहली शताब्दी के अंत में जब मूल प्रेरितों में से अंतिम की मृत्यु हो गई तब ये समाप्त हो गए हैं। Since I give this PPT in PDF format, you don't have to worry to write down. Please try to understand very clearly. और चूंकि ये एक प्रेजेंटेशन आपके सामने लिखित रूप में है, इसे आप इसे लिखने के लिए चिंता ना करें, परंतु इसे आप अध्ययन करें और सुनें। After completion of the message, let us discuss, let us have some time for question and answer. If you have any question, I'll be happy to answer if I know it. और इस अध्ययन के बाद अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो जरूर हम उसे आपस में अध्ययन करके उसे बताने की कोशिश करेंगे। And then we have seen that there are two kinds of verbal gifts and non-verbal gifts. और हमने और देखा था दो प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, पहला मौखिक और दूसरा गैर मुखर वरदान। So temporal gifts and operational gifts. और अल्पकालीन वरदान और आज जो प्रचालन में है वो वरदान। Temporal means till what time? Till AD 95 or 96. That is a time when Revelation was written. That is a time when New Testament canonization is complete. और अल्पकालीन का मतलब क्या है? एडी 95 से 96 के बीच में, जहां पर प्रकाशित वाक्य लिखना पूरा हो गया, उससे उस समय के बाद ये उस समय को अल्पकालीन वरदान कहा जाता है। Which are all these temporal gifts? और ये जो अल्पकालीन वरदान क्या थे? They are called sign gifts. और इन्हें हम संकेतों का वरदान कहते हैं। We'll try to understand a little more. Which are all the operational gifts? और कौन से ऐसे प्रचालन वरदान थे? Speaking gifts and service gifts. और प्रचालन वरदान में जो अनुग्रह की अवधि में दिए गए थे, इसमें बोलने वाले वरदान और सेवा का वरदान। What does it mean by sign gifts? और संकेतों का वरदान किसे कहते हैं? The sign gifts were given primarily to validate the authority of the Savior and his apostles prior to the writing of the New Testament. तो संकेत के जो चिन्ह है या वरदान है, उसको किस रूप में कहा गया है? वो क्या है? नए नियम के लेखन से पहले मुख्य रूप से उद्धारकर्ता और उसके प्रेरितों के अधिकार को मान्य करने के लिए संकेत वरदान दिए गए थे। So these miraculous proofs were no longer needed, for the scriptures themselves reveal the truth from false. और इस चमत्कारी प्रमाण की अब और आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पवित्र शास्त्र स्वयं सत्य को असत्य से प्रकट कर देता है। So Hebrews chapter 2 verse 4, God also bearing witness both with the signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will. और जैसा कि इब्रानियों की किताब 2:4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों
और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। So, 2 Corinthians chapter 12 and verse 12, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. दूसरा कुरिन्थी 12 के 12 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। This is what Apostle Paul says about himself. और ये प्रेरित पौलुस अपने बारे में स्वयं कहते हैं, Because he was not one among the 12, but he was counted as one among the 12. And that's the reason why whenever he writes letter, he writes to say that I am not doing all by myself because the Lord has chosen me. And as an apostle, with the authority of the apostle, I am writing this letter. That's how he writes most of the letters in the introduction. और चूंकि प्रेरित पौलुस 12 में से नहीं थे, वो 12 प्रेरितों में से नहीं थे, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए प्रेरित थे, इसलिए उन्हें कई बार इस खत में इस प्रकार लिखना पड़ता था कि मैं ये स्वयं से नहीं लिख रहा हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुझे प्रेरित ठहराया है। Apostle Paul, what he was saying was, as an apostle, I have truly performed the signs and wonders and mighty deeds among you because God has sent me with a specific purpose. That is the authority. Otherwise, people don't receive him. और प्रेरित पौलुस ने अपने अधिकारों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कहा कि ये प्रेरितों के लक्षण भी मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, जो धीरज सहित चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ्य के कामों से दिख रहा है। What you need to understand is, during the New Testament period, in the first century, all the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, and then in the Acts of the Apostles, they knew only Old Testament as the canonization of the scripture. और हम देखते हैं कि प्रथम सदी में जब सुसमाचार के लिखी जा रही थी, तो नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की जब चारों सुसमाचार को हम देखते हैं, तो उनके निर्माण के समय उनके पास केवल पुराना नियम ही था। So whatever is according to the Old Testament, they will accept it. और इसीलिए उस समय के लोगों के पास जो कुछ पुराने नियम से होता था, उसी को ही वो स्वीकार करते थे। But there is a major shift from the Old Testament to New Testament, then they need definitely some kind of authority backing them. और जब उन्हें पुराने नियम से नए नियम की ओर रूपांतरित होना था या स्थानांतरित होना था, या नए नियम से पुराने नियम से नए नियम में जाना था, तो उन्हें जरूर वास्तव में कुछ अलग बातों की, अधिकार की और इस प्रकार की चिन्ह की जरूरत पड़ी होगी। For example, in the Old Testament, there were many references of promises saying that Messiah will come, he will come like a king. और जैसे कि पुराने नियम में बहुत बार देखेंगे, वहां पे लिखा गया है, वायदा दिया गया है कि मसीहा एक दिन प्रकट होगा, मसीहा एक दिन आएगा। And John the Baptist said that this is the Lamb of God who takes away the sins of the whole world. और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस दुनिया में आया, तो उसने कहा, यही है वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। So Pharisees and Sadducees and high priests and lawyers and all spiritual leaders, they are well aware of this, of their Old Testament scriptures. They were waiting for king. They were not waiting for the lamb. और हम देखते हैं कि जितने उस समय सदुकी, फरीसी और जितने याजक और जितने भी महायाजक थे, वे मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे, और वो जानते थे कि मसीहा जो है एक राजा के रूप में आएगा, वो उसी लिए वो मसीहा का राजा के रूप में इंतजार कर रहे थे। That's the reason why they were asking, you show us the sign. How do we believe that? Why do we believe that you are the Messiah? If you are the Messiah, what are all the signs? That's what they were asking him. और यही कारण था कि वो प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह की मांग करते थे कि हम कैसे मान लें कि तुम वही मसीहा हो, अपने अपने को उस चिन्ह के द्वारा तुम प्रकट करो। In the Gospels, the signs and miracles and wonders performed by the Lord Jesus Christ were recorded categorically, saying that He is the Lamb of God, He is the King of Kings, the promised one, He is the Son of God. और यही सुसमाचार की चारों किताबों में बताया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह वो मसीहा हैं, वही जो है वो परमेश्वर के मेमना है, और वही राजाओं के राजा हैं। Those Jewish leaders, they missed the point. They thought the coming of the Lord Jesus Christ is only once, but they did not know the first coming and second coming. In between, there is a church. That's what Apostle Paul says, that the church was a mystery.
और ये जो यहूदी लोग हैं वो एक बिंदु को ध्यान नहीं दे पाए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन दो रूप में होगा, दो दो समयों में होगा, एक प्रथम आगमन और एक दूसरा आगमन। और प्रथम आगमन और दूसरे आगमन के मध्य के भाग को हम चर्च कहते हैं, जिसके बारे में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि यही चर्च या कलीसिया एक रहस्य है। That's why Apostle Paul says, "You killed him. You killed him not knowing that he is the Lord of glory." और इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि तुमने उस मसीहा को मार डाला और तुमने उस महिमा के राजा को मार डाला। Gospels very clearly says that, it is the Jews and Jewish leaders killed the Lord Jesus Christ, the Messiah, not Roman soldiers. और ये बाइबल आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह की हत्या रोमी सैनिकों ने नहीं, परंतु यहूदी और यहूदी अगुओं ने करवाया था। Of course, Jewish leaders, they have handed over him to the Romans law and to the Roman soldiers, and it is true that Roman authority have taken over of any the major punishment of death sentence. और ये बात अलग है कि उन्होंने अ, रोमन जो रोमियो के जो नियम थे, कानून थे, उसके अतिरिक्त उसके आधार पर मसीहा को उनके हाथों में दे दिया और सैनिकों ने अपने उस अधिकार के नाते उन्हें मृत्यु की सजा दी, क्योंकि उन्हें ही इस प्रकार की सजा देने का अधिकार था। So sign gifts were temporal because they were given to authoritate to authorize the Messiah, authorize apostles, authorize prophets, that they were sent from God and to build the church. तो हम देखते हैं कि ये जो संकेत के जो वरदान हैं, इसका महत्व क्या है। ये वास्तव में किसी मसीहा को, प्रेरित को या भविष्यवक्ता को आधिकारिक रूप से एक प्रकार से प्रस्तुत करता है कि हाँ, ये भेजा गया एक व्यक्ति है जिसके द्वारा कलीसिया का निर्माण होता है। Once New Testament canonization is completed, then no more extra truth is required. All the truth that is required is enough in all 66 books of the Bible. और हम देखते हैं कि जैसे ही नया नियम पूरा हुआ, तो नए नियम के जो निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद वो सारे सत्य पूर्ण रीति से उसमें आ गए हैं, और अब वो सत्य पर्याप्त है और पुराने नियम के साथ वो पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए और अभी किसी प्रकार के चिन्ह और सत्य की जरूरत नहीं है। So that's how it is mainly categorized as two parts. One is temporal, the other is operational. और यही कारण है कि इन वरदानों को अध्ययन के लिए दो भागों में हम देख रहे हैं, एक अल्पकालीन वरदान और दूसरा प्रचारण के वरदान। Come, let us try to study within the given time very briefly. Temporal gifts, operational gifts. Number one, apostles. We find it in Ephesians chapter 4, verses 11 to 13, which we have read now. और अल्पकालीन और प्रचालन वरदानों को समझने के लिए हम संक्षिप्त रूप में से देख रहे हैं। पहला है प्रेरितों का वरदान, जो कि इफिसियों 4 अध्याय उसके 11 से 13 के बीच में है। Verse 11 says, "He himself gave some to the apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers." जैसे कि इफिसियों 4 अध्याय उसके 11 के आगे लिखा हुआ है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। So, do we have the gift of the Spirit, what apostles had now? तो उस समय प्रेरितों में जैसा वरदान था, क्या वैसा वरदान आज हमारे अंदर है? But we believe that no, it is categorized under temporal category. तो हम इसे कह सकते हैं कि नहीं, वैसा वरदान हमारे अंदर नहीं है। इसका मतलब प्रेरित भी अल्पकालीन वरदान के अंतर्गत आते हैं। You may ask how and why. और आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे, क्यों। Okay, reason number one. Ephesians chapter 2, verse 20 says that he, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और आप इसे अब कारण जानना चाहेंगे तो पहला कारण क्या है, और वो है इफिसियों 2 अध्याय के 20 वचन में, जहाँ लिखा है, यह प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो। The foundation of the church was laid in Acts chapter 2. और हम देखते हैं कि कलीसिया की जो नींव रखी गई थी वो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में रखी गई थी। And over the foundation, Acts
apostles and prophets, and they built the church. और उस नींव के ऊपर में लिखा है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं ने उस कलीसिया का निर्माण किया है। Foundation is only laid once, not again and again. और आप देखे होंगे कि किसी भी भवन का नींव एक बार रखा जाता है, नींव बार बार नहीं रखी जाती है। So this verse tells me that the apostles' gift is not existing now. It is already done with, because foundation is already laid. Foundation is not necessarily needed. तो इसका मतलब है कि आज प्रेरितों का वरदान हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्रेरितों को जो नींव के लिए डाला गया था वो नींव डाली जा चुकी है, और बार बार अभी नींव डालने की जरूरत नहीं है। Who are involved in laying foundation? और ये कलीसिया की नींव के निर्माण में किन लोगों को उपयोग किया गया था? Apostles, prophets. और यहाँ लिखा है कलीसिया की नींव के रूप में प्रेरित और भविष्यवक्ताओं का उपयोग किया गया था। So apostles did it and prophets did it. इसका मतलब है कि कलीसिया की नींव का रखने का काम प्रेरित और भविष्यवक्ताओं ने किया है। So no more apostles now and no more prophets now. That is already done with. It was a temporal till AD 95-96. इसका मतलब आज और कोई प्रेरित और कोई भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि अल्पकालीन वरदानों के रूप में इसे एडी 95 और 96 में प्रेरित और भविष्यवक्ताओं ने कलीसिया की नींव के रूप में पूरा कर दिया है। And second one is they authored the scripture. 2 Peter chapter 1 verses 20 and 21 says, prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Who they were? They were the disciples of the Lord Jesus Christ. They were the apostles of the Lord Jesus Christ. They were the prophets of the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं कि जो दूसरा जो ये सबूत क्या है, दूसरी सच्चाई क्या है, वो है परमेश्वर का वचन इस बात को साबित करता है। और जैसा कि दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 20 और 21 में लिखा हुआ है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसका मतलब है कि भविष्यवाणी और जो पवित्रों ने जो काम किया है वो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा उस समय हुई है। So that means now nobody should say that I have extra truth God has revealed me through dreams and whatever is not in the Bible. God gave me a special revelation. That is false. तो आज अगर कोई कहेगा कि मुझे एक अतिरिक्त सच्चाई का पता चला है, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, प्रकाशन दिया है, और मुझे कुछ और ही सच्चाइयों का पता चला है, ये सब गलत है। In all 66 books, God has already revealed his truth. No more extra revelation from this apart from the scripture. और 66 किताबों में परमेश्वर ने अपने सारे सत्य को प्रकट कर दिया है, और उसे और हमें जानने के लिए किसी और प्रकार के प्रकाशन की जरूरत नहीं है। We have seen number one, foundation, number two, scriptures, authored scriptures. तो हमने देखा कि कलीसिया की नींव के द्वारा हमने देखा कि प्रेरित और भविष्यवक्ताओं का ये काम था जो हो गया है, और दूसरा वचन के द्वारा हमने उसे साबित होते हुए देखा। And the third one is when the apostle one who committed suicide, in his place one more apostle were interested to recruit. You know the condition what Peter said? Peter said that beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness of us, his resurrection. Acts chapter 1 verses 21 and 22. और हम देखते हैं कि 12 प्रेरितों में से एक जब मर गया, जिसे हम जानते हैं वो यहूदा इस्करियोती है, तो उसकी जगह लेने के लिए एक प्रेरित का चुनाव करने का विषय आया। और तब सभी लोगों ने एक विषय कहा, और पतरस ने खड़े होकर प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 21 और 22 के अनुसार कहा, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। Apart from the 12, one is committed suicide, Judas Iscariot, and Apostle Paul was added. That's what we find when we carefully study the scriptures. और हम देखते हैं कि जब एक 12 में से एक चेला मर गया, जिसे हम यूदा इस्करियोती कहते हैं, Suicide कर दिया. यह संकट। और हम जानते हैं कि 12
प्रेरितों में से एक प्रेरित जो यहूदा इस्करियोती था, वो आत्महत्या करने के बाद मर गया। तो उसकी जगह लेने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेरित के रूप में प्रेरित पौलुस को यहाँ पे हम 12वें प्रेरित के रूप में देखते हैं। That is the reason why we have put this into this account of temporal apostles. और इससे पता चलता है कि प्रेरित जो हैं, ये प्रेरिताई का वरदान जो है, ये अल्पकालीन समयों के लिए था, उसी समय के लिए था। You may ask a question, in 2 Corinthians chapter 12, verse, the fifth one is confirmation by the Lord by performing signs and wonders. This I have already explained. और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वयं इन बातों को किस रीति से प्रस्तुत किया गया, और जो कि हम पहले भी इस वचन के द्वारा देख चुके हैं, प्रभु ने कैसे पुष्टि की है। 2 कुरिन्थी 12 का 12 हमने पढ़ा था अभी। But of course, in 2 Corinthians chapter 8, verse 23, Apostle Paul himself says that Titus, he is my partner and fellow worker concerning you. If our brethren are required about, they are messengers of the churches of glory of Christ. The messengers, in some translations, they were written as apostles. और यहाँ पे जो 2 कुरिन्थी 8 का 23 में जैसे लिखा है, यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साक्षी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछें तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए हैं और मसीह की महिमा है। तो यहाँ पर जो मसीह के भेजे हुए संदेशवाहक है, उन्हें हम प्रेरितों के रूप में गिनते हैं। So apostle means actually meaning sent one. It's not a title. They were sent. In that meaning, Titus was said like that. और जैसा कि प्रेरितों का मतलब होता है भेजा गया व्यक्ति, तो भेजा हुआ व्यक्ति के रूप में हम यहाँ तीतुस को प्रकट होते हुए देखते हैं। But not title. परंतु ये जो प्रेरिताई है, कोई एक शीर्षक नहीं है, ये कि एक अर्थ है। इसका मतलब होता है कि कोई भेजा हुआ है। Even Romans chapter 6, 16 and verse 7, we find of the same tone. Greet Andronicus and Junia, my countrymen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles. That means a sent one, as a messenger, not as a title, who were in Christ before me. और जैसे कि रोमियो की किताब 16 अध्याय उसके 7 वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहां पे भी ऐसे लिखा है कि अंदरूनिकुश और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह हुए थे, उन्हें नमस्कार। तो ये वे लोग हैं जिन्हें वास्तव में भेजा गया था। So, because it is for the first time, I'm explaining more. Other things I will just run through, and you can just have your homework. Please once again repeat, uncle, the So, meaning of Romans chapter. because maybe you are hearing for the first time, I'm explaining more. The other parts I will not be explaining more. I will just running through. You have to do your homework. No, uncle, not about that. About Romans 16:7. Just repeat Romans that. 16:7. Here, apostle means sent one, not as a title. ओके। और रोमियो 16 के 7 वचन के अनुसार भी हम देखते हैं कि प्रेरित कोई प्रेरिताई शीर्षक नहीं है किसी का, लेकिन वो उसका मतलब भी है भेजा हुआ। That is how we need to proper interpreting the scripture says. और ऐसे ही हम वचन की सही व्याख्या करना है। So just because it is written, brother, why are you saying that it is already written? No, something like that you should not say. So we need to understand the context and it's a proper meaning. और नहीं भाई, ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा हुआ बोलने से नहीं होता है, परंतु हम उसके सही संदर्भ को पहले व्याख्या शास्त्र के द्वारा उसे समझना है। So another principle, we have only said three, no, another principle is Bible never contradicts itself. और दूसरा सिद्धांत है जो हम समझते हैं, और वो ये है कि बाइबिल कभी अपना विरोध नहीं करती है। The body of truth is united, they are never divided. और परमेश्वर की जो सत्य जो शरीर है, जो उसका बॉडी है, वो जुड़ा हुआ होता The है। truth as a body, I'm talking about the truth. It is a body of truth means all consolidated, raising one voice. It won't contradict itself. और जो सत्य रूपी शरीर है, वो एक होना चाहिए। सत्य रूपी शरीर कभी भी विभाजित नहीं हो सकता। इसका मतलब कि सारा शरीर मिलकर एक ही आवाज में बात करना चाहिए। So there are at least five: laid foundation of the church, authored the scripture, witness to the resurrection of Christ, one of the 12,
Paul is the exception because Paul also confirmed by the signs and wonders. So after NT is complete, no more apostles. तो हम यहाँ मुख्य 5 उदाहरणों के द्वारा, हमने वचनों के भागों के द्वारा इसे हम समझे कि प्रेरिताई का वरदान अल्पकालीन वरदान था जो अभी नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि इसे कलीसिया की नींव के रूप में रखा गया था। दूसरे भाग में हमने देखा वचन के द्वारा इसको साबित किया गया है। तीसरा हमने देखा मसीह के पुनरुत्थान के साक्षी के रूप में इसे साबित किया गया है। चौथे भाग में हमने देखा कि 12 शिष्यों में से एक को पौलुस के रूप में यहाँ देखा गया है। और 5वें भाग में हमने देखा कि प्रभु के द्वारा स्वयं इसकी पुष्टि की गई है। इसका मतलब है कि पुराने नियम के पूर्ण होने के बाद अभी कोई भी प्रेरित नहीं है। So the second one is prophets. और दूसरा है भविष्यवक्ता। This we have already seen, we have read also. और जैसे इफिसियों 4 के 11 से आगे पढ़ भी चुके हैं, और वहाँ लिखा भी है एक और जो है वो भविष्यवक्ता है। So whenever we say prophets, there are two kinds of approaches. One is speak to the people on behalf of God for the present, which is called foretelling. Second one is speak to the people on behalf of God for future, foretelling. Foretelling is different, foretelling is different. तो भविष्यवक्ता की सेवकाई को हम दो तरीके से देख सकते हैं, और वो है पहला, परमेश्वर की ओर से वर्तमान समय में लोगों को कुछ कही हुई बातें, जिसे वर्तमान समय में सच्चाई को प्रकट होना कहते हैं। और दूसरा है परमेश्वर की ओर से लोगों को भविष्य के बारे में बोलना, जिसे हम भविष्यवाणी कहते हैं। So laid the foundation of the church, this also we have seen. और हमने देखा कि कलीसिया की नींव के रूप में भविष्यवक्ताओं को भी रखा गया, इसे हम देख चुके हैं। And no more prophets because they have already done with. और इसलिए और कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपना काम कर दिया है। So 1 Corinthians 14:31, Apostle Paul says that even the ministry of prophets must also be validated by others. That's what here it says. If anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things which I wrote to you are commandments of the Lord. और चौथे भाग में हमें देखते हैं कि उनकी सेवा को मान्य किए जाना चाहिए, जैसे कि 1 कुरिन्थी 14 अध्याय के 37 में लिखा है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो प्रभु की आज्ञाएं हैं। So speak to the people on behalf of God. Foretelling, speak to the people on behalf of God. Foretelling, laid the foundation of the church. Their ministry has to be validated. So this says that after NT is complete, no more prophets. भविष्यवक्ताओं के विषय में हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से मनुष्यों को बात करते थे और वर्तमान समय की बातें कहते थे, जिसे हम वर्तमान समय की उनकी प्रकटीकरण कहते थे। दूसरा, ये भविष्यवक्ता परमेश्वर के ओर से मनुष्यों को भविष्य के बारे में बात करते थे, जिसे हम भविष्यवाणी कहते थे आने वाले भविष्य के लिए। तीसरा, कलीसिया की नींव में भविष्यवक्ता को रखा गया है। चौथा, और उनकी सेवा को मान्य किए जाना प्रभु के द्वारा जरूरी है। इसका मतलब है कि नए नियम के पूर्ण होने के बाद और अभी कोई भविष्यवक्ता नहीं है। So this is the explanation given by the cessationist. और ये जो सिद्धांत है ये उन लोगों ने दिया है जो कहते हैं कि समाप्तिवाद हो गया है, I am one among them. और उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। And then evangelists, that is categorized under operational. What does it mean? Supernatural ability to point sinners to Christ. और तो एक और वरदान है सुसमाचार सुनाने वाला वरदान, जिसे हम प्रचालन वरदान के अंतर्गत लेकर आते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? पापियों को मसीह की ओर इंगित करने की एक अलौकिक क्षमता। Ephesians 4:11-13, verse 11. He gave some to be apostles, we have seen, some prophets, we have seen, some evangelists. जैसे कि इफिसियों 4 के 11 में हमने देखा, कुछ को उन्होंने प्रेरित नियुक्त किया, देख लिया हमने। कुछ को भविष्यवक्ता करके नियुक्त कर दिया, वो भी हमने देख लिया। और कुछ को उन्होंने सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया। All believers are supposed to preach gospel. और सभी विश्वासियों के लिए आवश्यक बात है कि वो सुसमाचार प्रचार करने वाले बने। Bible says all believers are witnesses unto the Lord Jesus Christ. क्योंकि हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। All believers are supposed to be light and salt. प्रत्येक विश्वासी जो है वो नमक और ज्योति के रूप में होना है। But these are the evangelists which are full-time evangelists. परंतु यहाँ जो सुसमाचार सुनाने वाले लिखा है, ये पूर्णकालीन सुसमाचार सुनाने वाले हैं।
They burned with passion for the perishing soul. They burned with passion for the perishing soul, that they make such a decision to preach the gospel. They will die, but they will never compromise without preaching the gospel. और ये वे सुसमाचार सुनाने वाले उस वरदान को पाए हुए लोग हैं जिनके अंदर में आत्माओं को बचाने की आग एक जलती रहती है, और वो उनके लिए मरने को भी तैयार होते हैं कि वो किसी रीति से लोगों को सुसमाचार सुनाएं। So that means it is a supernatural ability to point sinners to Christ and supernatural ability to burden Christians to win souls. तो इसका मतलब है, पहला कि पापियों को मसीह की ओर इंगित करने की एक अलौकिक क्षमता इनमें होती है, और दूसरा आत्माओं को जीतने के लिए मसीहों पर बोझ डालने की इनकी अलौकिक क्षमता होती है। So these are the evangelists. They preach themselves and they motivate other believers to preach gospel to others. तो ये सुसमाचार सुनाने वाले वो होते हैं जो खुद उसी अलौकिक क्षमता के द्वारा पापियों को मसीह की ओर लाते हैं, और साथ ही दूसरों के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं कि वो भी आत्माओं को जीते हैं। And then Ephesians 4 verse 11, pastors and teachers, actually one word in Greek. That means those who are pastors, they are supposed to be teachers. If teaching gift is not there, he cannot be a pastor. तो और अगला वरदान है रखवाले और उपदेशक का, और इन्हें इब्रानियों की भाषा में पढ़ते हैं तो रखवाले और उपदेशक को एक साथ रखा गया। इसका मतलब ये है कि जो पास्टर होते हैं वो उपदेशक जरूर होते हैं। We can read like this, pastors who are teachers, or teachers आप who are pastors. आप कह सकते हैं रखवाले जो उपदेशक है, या उपदेशक जो रखवाले हैं। So that is the supernatural ability to preach and teach the word of God, so that they may feed, they may protect, they may disciple, they may comfort, they may lead the flock of God. और यहाँ इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करने और सिखाने की अलौकिक क्षमता, ताकि वे परमेश्वर के झुंड को खिला सकें, रक्षा कर सकें, अनुशासन दे सकें, आराम दे सकें और उसकी अगुवाई कर सकें। So not all teachers are pastors, but all pastors are teachers. तो हम देख रहे हैं कि सभी उपदेशक रखवाले नहीं होते हैं, लेकिन सभी रखवाले उपदेशक जरूर हैं। And then ministry, Romans chapter 12 verse 6 to 8. Ministry, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives with liberty, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Here we find a list of gifts of the Holy Spirit. और तीसरा है सेवा के बारे में, और जो कि रोमियो की किताब 12 अध्याय के 7 और 8 में हम देखते हैं, यदि सेवा करने का वरदान मिला हो तो सेवा में लगे रहें, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, और जो दया करे वो हर्ष से करे। ये है पवित्र आत्मा की सेवा के वरदान के बारे में। So ministry means what? In Greek, diakonia means helps. May it be physical help or spiritual help. सेवा करने का मतलब क्या है? ये एक यूनानी भाषा के डायकोनिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है मदद करना, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो। And then fourthly, teachers. और चौथा है सिखाने वाला। So teacher means what? One who interpret the word, clarify, systematize, explain, apply God's truth with clarity. और शिक्षक हम किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी शब्द की व्याख्या करे या वचन की व्याख्या करे, उसे स्पष्ट करे, व्यवस्थित करे, समझाए और परमेश्वर के सत्य को स्पष्ट रूप से लागू करे। And fifth one, exhortation. और पांचवा है उपदेशक। What is exhortation? Exhortation means encourage to do according to the teaching. और उपदेशक का मतलब क्या है? शिक्षण के अनुसार करने के लिए प्रोत्साहित करना। And then sixth one is giving. और छठवा है देने वाला। Giving means what? Supernatural ability to accumulate and give large amounts of one's finances to the glory of God. और देने वाले का मतलब क्या है? कि परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी मात्रा में धन जमा करने और देने की अलौकिक क्षमता। You'll be surprised to hear some of the testimonies of the servants of God.
There are people who give 90% of their income to the ministry, they keep only 10% with them. और परमेश्वर के कई सारे सेवक ऐसा गवाही बताते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो सेवा करते हैं और अपनी कमाई का 90% भाग वो सेवा के लिए देते हैं और 10% खुद के रखते हैं। There are people who are servants of God, they sell their property and support the ministry. और ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के लिए सेवा करने वाले लोग हैं जो अपनी संपत्ति को बेच देते हैं और परमेश्वर की सेवा की मदद करते हैं। So God gives some supernatural ability to accumulate and give large amounts of one's finances to the glory of God. और वास्तव में परमेश्वर कई लोगों को ऐसी देने की अलौकिक क्षमता देते हैं ताकि वो परमेश्वर की बड़ी मात्रा में धन जमा कर सके। Of course, every believer is supposed to give. और हालांकि ये जरूरी है कि हर विश्वासी देना जाने। It's not begging, it's not leaders begging to give. It is one's own responsibility and calling. और यहाँ पे ये नहीं है कि अगुवे इसकी मांग करें कि हमें दो करके, परंतु ये तो हमारी खुद की एक जिम्मेदारी है और हमारे बुलाहट है। And seventh one is leading, leader. और सातवां है लीडर्स, अर्थात अगुवाई करने वाला एक नेता। Here, Romans chapter 12, verse 78, he who leads. और जैसा कि रोमियो 12 अध्याय के 7 और 8 में लिखा है कि जो अगुवाई करे। Who is a leader? और अगुवा कौन होता है? A visionary, a missionary, a planning man, one who have values, one who is a role model, one who builds the team, team building. He raises the resources, he handles the crisis, one who trains, he equips, he'll sacrifice, and there are so many qualities in the leadership. और एक अगुवा हम किसे कहते हैं? एक नेतृत्व करने वाले नेता कौन होता है? जिसके अंदर नेतृत्व की आवश्यकताएं होती है, जैसे कि वो काल्पनिक करने मतलब दर्शन देखने वाले होते हैं, विशेष कार्य करने वाले होते हैं, योजना बनाने वाले होते हैं, मूल्यों को स्थापित करने वाले होते हैं, एक प्रतिरूपण अर्थात किसी के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत होने वाले रहते हैं, एक टीम का निर्माण करने वाले, संसाधन जुटाने वाले, संकट का प्रबंधन करने वाले होते हैं, प्रशिक्षण से लैस होते हैं और उनके अंदर त्याग और ऐसे अन्य कई सारे गुण होते हैं। And then eighth one is showing mercy, shows mercy. और 8वां वरदान है दया करने का वरदान, जो कि रोमियो 12 के 7 और 8 में। That means supernatural ability to minister sick and afflicted. दया करने वाले वरदान का मतलब है कि एक मनुष्य के अंदर, अविश्वासी के अंदर एक अलौकिक क्षमता होना जिसके द्वारा वो बीमार और पीड़ित व्यक्ति की सेवा कर सके। And then verse 9, word of wisdom. 9वां वरदान है बुद्धि की बातों का वरदान। So that's written in 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 8. जैसा कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 और 8 में लिखा है। So this is given in the operational category, means one who teaches, ability to understand the word by the Holy Spirit and aptly to practice in life. और ये एक प्रचालन वरदान के अंतर्गत आता है और बुद्धि की बातों को सिखाने का वरदान का मतलब होता है पवित्र आत्मा द्वारा वचन को समझने की क्षमता और जीवन में अभ्यास करने के लिए आवेदन करना। This gift is normally given to Bible teachers. The Bible teachers, they will understand. They have this another gift of the word of wisdom, They have that wisdom so that they will interpret the scriptures, they will understand the scriptures, they'll practice the scriptures, and then share the scriptures with others. और वास्तव में एक बाइबल शिक्षक के रूप में उन्हें सामान्य रूप से ये बुद्धि का वरदान भी उनके अंदर जरूर होता है, तभी वो परमेश्वर के वचन को समझकर उपयोग में लाकर उन्हें अन्य लोगों को सिखा पाते हैं। And the other one is the word of knowledge. The word of knowledge is put in the category of temporal. That means revelation and inspiration for writing the scriptures. और अगला वरदान है जिसे हम ज्ञान की बातों का वरदान या ज्ञान का वरदान कहते हैं। ये भी एक अल्पकालीन वरदान है क्योंकि शास्त्रों को लिखने का और रहस्य उद्घाटन का और उसकी प्रेरणा का वरदान अलग है। Because all with 66 books of the Bible, the revelation and inspiration of writing the scripture is concluded and no more extra revelation. तो हम देखते हैं कि शास्त्रों को लिखने और उसका रहस्य उद्घाटन और उसकी जो लिखने की प्रेरणा है और भी जरूरत नहीं है क्योंकि वचन पूरी तरीके से उनकी प्रेरणा के द्वारा लिखा जा चुका है। That's the reason why the word of knowledge is put in the temporal category. और यही कारण है कि ज्ञान की बातों का वरदान अल्पकालीन वरदान के अंतर्गत है। And then faith. और अगला वरदान है विश्वास। There are at least three categories of faith. और हम देखते हैं कि मुख्य रीति से 3 प्रकार के विश्वास होते हैं। One is saving faith.
every पहला person should have for born again experience. पहला है एक बचाने वाला विश्वास, और ये ऐसा विश्वास है जो एक विश्वासी को नए जन्म की ओर लेके जाता है। And secondly, sanctifying faith. Day to day lives, yes, we need to have. That is for all believers. और दूसरा है पवित्र करने का विश्वास, और ये है जो प्रतिदिन एक विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए कि मुझे पवित्र होना है। So the third category is stewardship faith. Here the faith means stewardship faith, not category number 1 or category number 2. Number 2, the faith here as a spiritual gift means stewardship faith means supernatural ability to believe and expect great things from God. और तीसरा होता है चमत्कार दिखाने वाला विश्वास या परिचारक विश्वास जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर से महान चीजों पर विश्वास करने और उम्मीद करने की एक अलौकिक क्षमता। This kind of faith, we find very few, mostly leaders, those who led, the ministry in a different level. और एक अलग ही स्तर पर सेवा करने वाले कुछ दासों के अंदर में हम इस प्रकार के विश्वास को देखते हैं। So a miracle is a supernatural event which overrules natural law. Miracle means it is a supernatural event which overrules natural laws. और वास्तव में चमत्कार क्या होता है? चमत्कार एक अलौकिक घटना होती है जो प्राकृतिक नियमों से अलग हो जाती है। There are many witnesses. There is no time to tell now. Already my time is up. और बहुत सारे उदाहरण हैं इसे समझने के लिए, परंतु हमारे पास समय की कमी है। So fourth one is healing. This I have already explained when I taught you the book of Acts. और हमने जब प्रेरितों के काम को पढ़ा था तो इस चौथे वरदान के बारे में देखा था, जीवा चंगा करने का वरदान। So healing in the sense, mostly healing during the time of Jesus and apostles, because their level of healing was organic growth. That means with leprosy, suppose 4 fingers are gone. There, when God healed, 4 fingers came up as a fresh babe, Now healing means no further expansion. So it is arrested there. But in those healing, it was different. और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है यीशु और प्रेरितों के समय में ज्यादातर चंगाई आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों थी। उस समय जैविक विकास प्रकार की चंगाई होती थी, जैसे कि कोढ़ी लोग होते थे। कोढ़ी लोगों का जो हाथ और पैर गल जाता था, लेकिन उस समय जब उन्हें चंगाई मिलती थी तो उनके गले हुए उंगलियां फिर से वापस बन जाती थी। लेकिन आज के समय में हम ऐसी चंगाइयों को नहीं देखते हैं। ये उस समय इस प्रकार की चंगाइयां होती थी। Of course, in the context of gospel, in the Mark's Gospel, chapter 16, the Lord Jesus Christ himself said, so we are not totally eliminating that healings are not there. In the context of gospel, God can do wonders, God can do miracles. It's possible, but not as an office, a specific office, a regular office is not there. तो मरकुस 16 में के वचन में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उसके 17 से आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वरदानों की जो जिस चंगाई का वरदान उसके बारे में बताया है कि विश्वासियों के द्वारा होगा। उनके जीवन से चमत्कार भी हो सकता है, आश्चर्यकर्म हो सकता है, परंतु नियमित रूप से जैसे पुराने नियमों में हम देखते हैं कि चमत्कार हुआ करता था, प्रभु के समय में ऐसे प्रकार के नियमित चमत्कार नहीं होंगे। So miracles, it is also kept in the temporal category. Miracles means miracles which cannot be explained by nature or scientific laws, therefore attributed to the supernatural God. और सामर्थ के काम करने का वरदान भी अल्पकालीन वरदान के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ होता है कि चमत्कार है जिन्हें प्रकृति या वैज्ञानिक कानूनों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें अलौकिक भगवान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। So it is possible for miracles, particularly in the process of preaching gospel, but not of professional miracles office. चमत्कार संभव है विशेष रूप से सुसमाचार की प्रक्रिया में, लेकिन पेशेवर चिकित्सक के कार्यालय की स्थिति में विशेष सामर्थ्य के काम संभव नहीं है। So discerning of the spirit. और अगला है 11 नंबर का वरदान, आत्माओं की परख। So that means supernatural ability to distinguish between demonic, human and divine spirits in another person. तो आत्माओं की
परख का वरदान का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति में शैतान और मानव और परमेश्वर की आत्माओं के बीच अंतर करने की एक अलौकिक क्षमता। God has given this discerning spirit to few servants of God. They will discern whether the other person has that evil spirit or Holy Spirit or his own normal human spirit. और यहाँ परमेश्वर जो है कई सेवकों को, संतों को इस प्रकार का वरदान देते हैं अपने लोगों को, जिसके द्वारा वो दूसरों के जीवन में उनकी आत्मा है या परमेश्वर की आत्मा है या शैतान की आत्मा उसे जान जाते हैं। So different kinds of tongues. This also we have held categorically. We have discussed और categorically. और ये है एक और भाषा जिसे हम अनेक प्रकार की भाषा का वरदान कहते हैं। So we don't need to discuss now because we have already. Then interpretation also is of the same category. और भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान भी अल्पकालीन We वरदान have के already अंतर्गत। discussed it, and you can just go back to those videos and then verify. And then helps. We find it in 1 Corinthians 12:28 helps. और उसके बाद उपकार करने वाले वरदान है, ये भी प्रचालन वरदान के अंतर्गत आते हैं, पहला Any कुरिन्थी help, 12:28 में। any help, spiritual or physical or material. चाहे किसी भी प्रकार की हम मदद करें, चाहे शारीरिक रूप से मदद करें, आत्मिक रूप से या किसी वस्तु को देकर मदद करें, ये है उपकार करने का या मदद करने का वरदान। And then administration. और 13वां नंबर का वरदान है प्रबंध करने वाला वरदान। That means supernatural ability to organize, administer, and promote various affairs in the local church or institution. और प्रबंध करने वाले वरदान का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्थानीय कलीसिया में विभिन्न मामलों को व्यवस्थित, प्रशासन और बढ़ावा देने की एक अलौकिक क्षमता। And then hospitality. 1 Peter chapter 4 verses 9 to 10. इसके बाद है अतिथि सत्कार करने का वरदान, ये भी प्रचालन वरदान के अंतर्गत आता है, पहला पत्र 4 का 9 और 10। And every Christian family, every believer is supposed to be having this hospitality gift. But there are few specific calling to do the hospitality. They love to do it and they give themselves for hospitality. और ये जो अतिथि सत्कार का वरदान है हर एक विश्वासियों के जीवन में, हर एक क्रिश्चियन बिलीवर्स के जीवन में, सेवकों के जीवन में होना चाहिए। परंतु इसके अलावा एक अतिथि सत्कार का वरदान जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक मनुष्य अपना सब कुछ दे देते हैं और उनके अंतर्गत ये अतिथि सत्कार की भावना होती है, ये कुछ विशेष लोगों को दिया गया वरदान है। And then 15th one is celibacy. That means being single with they don't marry, they will serve the Lord as a single. और उसके बाद एक 15 नंबर का वरदान है जिसे हम अविवाहित रहने का वरदान या अविवाहित जीवन जीने का वरदान करते हैं, जिसमें एक मनुष्य विवाह नहीं करते। 1 Corinthians chapter 7 verse 7. For I wish that all men were as I myself, but each one has his own gift from God, one in this manner and another in that. पहला कुरिन्थी 7:7 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। Bible says it is good for men for anyone to be single. Everyone should marry. That's what we find in Genesis chapter 2. It is common understanding for all to marry because it's not good for man to be alone. That's what Bible says. Verse 18, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. और जैसा कि परमेश्वर के द्वारा हम देखते हैं कि उन्होंने विवाह का सिद्धांत बनाया हुआ है, जो उत्पत्ति 2:18 में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। So that is common command for everyone, but being celibacy a specific calling. For example, God told prophet Jeremiah not to marry. और ये जो विवाहित रहने की जो आज्ञा है वो तो सबके लिए सामान्य है, परंतु अविवाहित जीवन बिताने की जो आज्ञा है या जो गिफ्ट है या वरदान है, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है, जैसे कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा था कि तुम्हें विवाह नहीं करना है। Some people say that Apostle Paul was single. Some people say that he was married, but his wife died. कुछ लोग कहते हैं कि प्रेरित पौलुस अविवाहित थे, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि प्रेरित पौलुस विवाहित थे और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। We don't know about his family matters. परंतु हम उनके परिवार के विषयों के बारे में नहीं जानते हैं।
So these are all the list we have seen in the temporal category and the operational category. तो हम यहाँ वरदानों को देख सकते हैं जो अल्पकालीन रूप में है और ऑपरेशनल रूप में है। I've taken extra time today और आज हमने थोड़ा अतिरिक्त समय लिया है because I can't again break into another section. क्योंकि हम इसे तोड़ के अलग दिन में अध्ययन नहीं कर सकते थे। Thank you very much for your kind patience. परमेश्वर आपके धीरज के लिए आपको आशीषित करे। Hope God has blessed you. हम आशा करते हैं परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें।